कांग्रेस पार्टी द्वारा और सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा एनसीटीसी के विषय को लेकर जिस तरह से राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही है, ये देश के सुरक्षा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश में किसी ने भी अच्छी तरह से जानकारी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उसका मेलजोल करना, उससे एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस को तैयार करना और राज्यों के साथ सहयोग से उस पर आवश्यक कार्रवाई करना, इन 4 बिंदुओं को किसी ने भी विरोध नहीं किया है। लेकिन सरकार ने जो एनसीटीसी का खाका तैयार किया है, उसमें एक इंटेलिजेंस जांच एजेंसी को पूरे अधिकार दे रहे हैं कार्रवाई के। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां जांच एजेंसी को कार्रवाई के, पुलिस कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। पुलिस अधिकार अलग है, वो राज्यों के साथ है, और इसलिए राज्यों के अधिकारों का तो हनन है ही। लेकिन ये केवल राज्य और केंद्र के मतभेदों का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती तैयार कर रही है कांग्रेस। हमने देखा है कि जहां तानाशाही है, जहां इंटेलिजेंस एजेंसी, जांच एजेंसी को पुलिसी कार्रवाई के अधिकार दिए जाते हैं, तो किस तरह का काम इतिहास में हुआ है। और इसलिए लोकतंत्र को एक तरह से चोट पहुंचाने वाला जो एनसीटीसी का फिलहाल जो खाका तैयार किया है, उसको लोगों ने विरोध किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को किसी ने विरोध नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए जिस तरह से खुफिया सूत्रों का अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंटेलिजेंस कलेक्शन, ये जो सारी बातें हैं, इसको भी किसी ने विरोध नहीं किया है। और ये जानते हुए भी जानबूझकर हैदराबाद हमले के बाद सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से एक राजनीति की जा रही है। बेवजह राज्यों को और विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करने का ये घिनौना प्रयास है। हम ऐसे प्रयासों की निंदा करते हैं और हम तो कभी भी खुली बहस के लिए तैयार हैं। लड़ाई सही तरीके से हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है, उसके लिए हमारे दोनों नेता विपक्षों ने सदन में भी सहयोग की बात की है और सारे दलों के नेताओं ने भी वही भावनाओं को दोहराया। ऐसे होते हुए भी जिस तरह से कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो बहुत गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। The whole NCTC debate after Hyderabad blast, which has been deliberately brought into the public domain by the Congress party and some elements in the government, is absolutely condemnable and it is misplaced. Nobody in the country has opposed to fight effectively against the terrorism. Nobody has opposed to effectively collect the intelligence, sharing of intelligence, providing actionable intelligence, taking action in real time, or even upgradation of the whole apparatus of intelligence collection and collation. Nobody has opposed it. To blame opposition parties and to suggest that some states are not serving the national purpose is absolutely erroneous, is absolutely unacceptable. What states and many parties are opposing the NCTC is its present structure. The NCTC's present proposal by the government is giving police powers to intelligence agency. This is not done in democratic institutions. In a democratic setup, you will have intelligence agencies and its effective coordination with the police, maybe the state or otherwise, in a coordinated manner, and that is well understood. But to take away the state's right, already in the name of terror, you have established NIA, which have the powers over and above the state police. They can independently act, but that's an investigating agency. Here you are creating a NCTC framework for collecting and sharing intelligence. So intelligence agency which will be reporting to IB
you are practically giving IB the police powers, which is totally unacceptable. And that is why it is intrusion on the state, in the state domain also. After all, law and order and police. Why this central government has distrust for the state police? They should trust states, they should share information and effectively coordinate the police action at the state level. But what the present format is there, when both leader of opposition in both the houses of parliament have already offered the constructive cooperation post Hyderabad blast in our fight against terrorism, the government should have appreciated that call and should have behaved more sensibly. But instead, the government has chosen to do and politicizing the whole issue of NCTC. This is not the way of taking the anti-terror fight ahead. प्रकाश जी, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, वही लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। Tamil Nadu is not a NDA state. There are many other states which are not. Orissa is not a NDA state. West Bengal is not a NDA state, and still they are opposing. So, the whole political color to the NCTC debates is most unfortunate and condemnable. We condemn the Congress approach and its effort to politicize this debate is absolutely unacceptable. दिल्ली में प्रभावी तरीका है कि उसको आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली में विरोध है एनसीटीसी कोई अक्सर इलाज नहीं है। एनसीटीसी तभी प्रभावी होगा जब इंटेलिजेंस और पुलिस पावर अलग की जाएगी। इंटेलिजेंस एजेंसी को पुलिस पावर देना ये केवल राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है, ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का अतिक्रमण होगा और इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा होगा। और इसलिए जो लड़ाई है आतंकवाद की, वो हमें समझना चाहिए। वो पाकिस्तान से प्रेरित एक आतंकवाद है जो सीमा पार से आता है या सीमा पार से प्रेरित है। दूसरा आतंकवाद है जो नक्सलवादियों ने 7-8 राज्यों में बड़े पैमाने पर चलाया है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अपने अपने तरह का एक अलग आतंकवाद है। इसकी सबका चुनौती बहुत जटिल और मुख्य है, उसको टैकल किया जा सकता है सबको साथ लेकर। इस तरह से विभाजन की रेखा खींचकर सरकार ये लड़ाई नहीं जीत सकती। पहले तो सरकार और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की दो मुंह की बात करने की जो शैली है कि चिदम्बरम नक्सलवादियों के लिए एक बोलते थे और सोनिया जी ने एक आर्टिकल लिखा तो उनकी भाषा ही बदल गई, उनके सुर बदल गए। और दिग्विजय सिंह तो सीधे सीधे जाकर पुलिस बलों का मनोबल गिराने का काम करते हैं और आतंकवादियों के घर जाकर उनको सहानुभूति जताते हैं। तो ये जो काम करती है कांग्रेस पार्टी दो मुंह से, उसके कारण आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई कमजोर हुई है, न कि विपक्षी दलों के रवैये के कारण या न कि राज्यों ने किया हुआ सही विरोध जो है एनसीटीसी के प्रेजेंट खाके को, उसके कारण नहीं हुआ है। ये कांग्रेस के दोहरी नीति के कारण हुआ है। जो दिल्ली में बम मिला है ये एक गंभीर घटना है। पुलिस को इसकी तुरंत जड़ तक जाना चाहिए और हम चाहेंगे कि जनता निश्चित रूप से शांति बरते, क्योंकि आतंकवादियों की मानसिकता यही है, उद्देश्य यही है कि इसमें समाज में भेद पैदा हो, विवाद पैदा हो और समाज आपस में लड़े। ये न हो, यही अपने लिए चुनौती है और इसलिए उसकी हम अपील करेंगे और पुलिस जड़ तक जाए, यह हमारी उसमें मांग रहेगी। राम सेतु का मुद्दा बहुत गंभीर है। जैसे पार्टी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि अचानक सरकार ने भूमिका बदली है, यू टर्न किया है। लोगों के दबाव में और आंदोलन के दबाव में और देश भर से जिस तरह से प्रतिक्रिया आई
तब सरकार ने अपना पहला एफिडेविट बदल के जनभावनाओं की परवाह करने वाला एफिडेविट दिया, पचौरी कमेटी स्थापन की। लेकिन अब पचौरी कमेटी ने राम सेतु न तोड़ने की सलाह दी तो उनकी रिपोर्ट ही खारिज कर दी। ये सरकार की नई रीति है कि शुंगलू कमेटी शीला दीक्षित सरकार को भ्रष्ट कहेगी तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ही खारिज करो। अगर पचौरी कमेटी राम सेतु न तोड़ने की सही सलाह देती है तो उसी को डस्टबिन में डालो, ये नहीं चलेगा। और इसलिए हमने ये कहा है कि इसके रास्ते ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जो विश्व की धरोहर है, जो करोड़ों लोगों के आस्थाओं का सवाल है और जो एक इतिहास की प्रेरणामयी तस्वीर है, उसको तोड़ने का पाप मत कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा जन प्रक्षोभ होगा जिसके सामने सरकार टीक नहीं पाएगी। और इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसको वो तुरंत वापस ले। और ये मुद्दा हम सदन में, दोनों सदनों में उठाएंगे, इसी सप्ताह उठाएंगे। The Ram Setu has become a very serious issue now. Under the public pressure and after witnessing the national agitation all over the country, the government changed its affidavit 2 years ago and appointed Pachori committee. Now, after Pachori committee has submitted a report suggesting that the Ram Setu should not be broken to create the way, and that is why they are dumping the report. This is the new strategy of the government. If Shunglu committee holds Sheila Dikshit government responsible for corrupt practices, then it dumps the report itself. Now, Pachori committee has suggested that Ram Setu should not be broken, then the committee's report they want to dump. This is unacceptable. Government must withdraw its affidavit before the Supreme Court and must find out an alternative way without breaking the Ram Setu. Still they can have the new way between Sri Lanka and India through different alignments. कल रेलवे बजट आ रहा है। रेल ने पहले ही दर बढ़ाए हैं, कल भी बढ़ाएंगे, और कल नहीं बढ़ाते तो बजट के बाद बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको कोई बजट की वो कोई पवित्रता नहीं रखी है। अब बजट के पहले भी बढ़ाते हैं, बजट के बाद भी बढ़ाते हैं। हम चाहेंगे कि यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाएं इसमें बढ़ोतरी हो और एक दिशा दिखे कि जिस तरह के रेलवे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसको इंगित करने वाला बजट हो, यह हमारी अपेक्षा है। दी पीपल ऑफ दिस कंट्री एक्सपेक्टिंग रेलवेज to show a vision for the future railway reforms which are needed, but at the same time improve upon the security and facilities to the passengers. There has to be, we are interested to see how much grant is provided from the general budget to the railway modernization. Otherwise, the only way for railways is to increase fares, which they are doing before the budget, they will do it after the budget. So that sanctity they have already not implementing, and that's why we expect that railway budget should be balanced, should be speeding up the development, and at the same time provide more safety, security and facilities to the consumers. What is the BJP stand on PJ Kurian when the Women Protection Ordinance came before Rajya Sabha? We have already given our opinion. PSLV उपग्रह का प्रक्षेपण आज हुआ है। इस पर हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक
जिस तरह से एक तरह से तपस्या करके एक एक छलांग लगा रहे हैं, अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहराएगा। बहुत काम के नए नए सैटेलाइट्स अवकाश में भूस्थिर किए जा रहे हैं और उससे देश को बहुत फायदा होगा। और इसलिए सफल प्रक्षेपण के लिए सभी वैज्ञानिकों को पार्टी बधाई देती है।